Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and a hearty warm welcome to all the viewers of Mana TV and Mana TV International. You're watching Community Special with Jyotsna. And today I am very, very happy. Of course, first of all, I would like to wish everybody Eid Mubarak to all those who are celebrating this beautiful festival today. आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज मेरा ये दिन जो है खास है क्योंकि काफी दिनों से आप मुझे देख रहे हैं कि मैं जो हूँ काफी कोविड रिलेटेड टॉपिक्स के साथ में अपना परफॉर्म हम अपने शोज लाइव कर रहे थे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ला रहे थे। और जब हम बात करते हैं टेंशन और स्ट्रेस की जो घर पे लॉकडाउन में होते हुए आप लोगों को हो रही है, when you are tense staying at home under this lockdown situation of COVID, today I thought of giving a twist to our show. Yes, the twist will come in form of a soulful music, soulful singing, ghazals and devotional songs that will soothe your mind today. Yes, we need it the most, and music treats, music rejuvenates our soul. And today, for that reason, I have a very special guest with me. A guest who has acclaimed many awards, who is performing over the world for last 10 years. Her name is Vidhi Sharma, and she is a playback singer who has been performing worldwide for more than a decade. As I said, she is professionally trained in Hindustani classical and light classical music. Vidhi has won Global Indian Music Award for her collaboration with international artists and has won many other awards. Vidhi has, performed at various national and international music festivals, and her soulful rendition of Bhor Bhai Aarti has triggered more than 8.5 million views. Not just that, her several bhajans, ghazals, and geet released by music labels like T Series, HMV Sarigama, Mystica Music, 360 Degree Records, etc. are already popular amongst her fans. So without delaying, I welcome my guest, Vidhi. Hearty welcome to Community Special with Jyotsna. Thank you, Jyotsna. I'd like to especially thank the entire team of Community Talks with Jyotsna. And it's really a pleasure and honor to be a part of the show. And I'm very sure today my audience are going to have a great time. And having said that, आप सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी in whatever language you find comfortable. This platform is very much Hindi and English both today. So a little bit more about your upbringing and your background, and then the famous accolades that you have, won in your life through this talent of music and singing. Correct. I was born and brought up, I'm born and brought up in Delhi, New Delhi in India. And amidst sounds of music, you can say, because my father sings very well. And it was already, music was a part of our family. कुछ भी नया एल्बम आता था या कोई भी नया उस समय कैसेट्स होते थे, तो लता जी को के गीत मुझे सुनने का बहुत शौक था। तो जो मेरा पहला गीत था वो था लेकिन पिक्चर का यारा सिली सिली। मैं कुछ 4-4.5 साल की थी। मैंने गाना तो 2.5 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। मतलब literally when children babble at that age, I started humming tunes. So सबको हैरानी होती थी, अरे तो इतना छोटा बच्चा है, इतना अच्छे से गा रहा है। तो it used to be a lot of fun, and then gradually started learning music. और ताजुब की बात यह है कि कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशन बनाएंगे म्यूजिक को, बिकॉज अगेन it's an educational family that I have. I have a background of educational family. मेरे father बैंक में काम करते हैं, बैंकर हैं, and my mother is a school teacher. तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया जाता था और मुझे संगीत से बहुत प्रेम था शुरू से। मतलब कोई भी कैसेट आता था तो मुझे शौक होता था कि मैं उसको सुनूं और उसमें से सीखूं, कुछ करूं। और फिर संगीत सीखना शुरू किया। अपना 6 साल का विशारद पूरा किया क्लासिकल म्यूजिक में, संदर्भ महाविद्यालय से लर्न्ड म्यूजिक, कंप्लीट एजुकेशन, एंड देन लाइट क्लासिकल फ्रॉम महेंद्र सलीम साहब फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के कंपोजर रहे हैं हमारे गुरुजी, और उनसे गज़ल, गीत, भजन, इसकी ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग हम लोगों ने ली। और
Masters in psychology from Delhi University is what Wow, I am amazing. running क्या occasionally. Yeah. But जैसे कि बोलते हैं ना, डेस्टिनी लाइफ जो है आपको ले जाती है जिस तरफ जाना होता है। तो मेरा लास्ट प्रैक्टिकल का एग्जाम था, मुझे आज भी याद है, मास्टर्स का, और मुझे एक रिकॉर्डिंग का फोन आया। छोटा मोटा हम करते रहते थे, कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स ऑल इंडिया रेडियो का करते थे, कुछ जिंगल्स गाते थे, तो ये काम चलता रहता था। पर जब वो लास्ट था और सब यही, उस समय यही चलता था कि अब करियर, अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या जॉब ढूंढनी है, कहाँ जाना है। और आप सोचिए उसी दिन मुझे एक रिकॉर्डिंग का फोन आया। तो जैसे बोला जाता है कि भाई तुम्हारा जो जर्नी है वो वहीं है, वहीं का डेस्टिनेशन है। तो रिकॉर्डिंग करने गई तो उस समय मुझे लगा कि ये जो माइक्रोफोन है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और Absolutely. मुझे इसी में खुशी मिलती है। इसी का ये काम मुझे काम नहीं लगता है, इट्स माय पैशन, एंड आई हैव टू do something about it. I have to pursue music. So that's when Amazing. life took a turn, and I started working commercially as a commercial artist, and started performing live full time, you can say. Yeah. Amazing, amazing. You found your true north at an early age while you were just passing out from your college. This is amazing. मतलब Right. काफी लोगों को टाइम लग जाता है कि मेरा ट्रू नॉर्थ क्या है मेरी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढने के लिए। और Correct. साइकोलॉजी करते हुए दिमाग की पढ़ाई तो अच्छे से करी, और आपने जी। दिमाग का अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए म्यूजिक को सही चुना है एज अ प्रोफेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली हमें मास्टर्स में अपने आप को पढ़ना सिखाते थे, अपनी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग करना सिखाते थे। तो कुछ आधे जो फैक्ट्स थे वो मुझे सेल्फ स्टडी करके भी पता चले, और सेल्फ एनालिसिस क्योंकि हमारी रेगुलर एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो आई राइट। थिंक इट हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज़ माय कॉलिंग। सो आई थिंक इट रियली हैड अ रोल टू प्ले इन अमेजिंग, अमेजिंग। एंड पर्स्यूइंग विदि, म्यूजिक। आपने बहुत सारे अच्छे गाने गाए हैं, और एक जी, करंट जो है इरफान खान जी चले गए हमें छोड़ करके। हुँ, उनकी हुँ, मूवी हुँ। पान सिंह तोमर ने तोमर में आपने एक बहुत अच्छा गाना गाया है, फोक जी, सॉन्ग है। जी, 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 जी। हम आपसे वो सुनेंगे, पर हुँ, सबसे हुँ। पहले हम आपसे चाहेंगे, अब हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि बस अब क्या सुने, जल्दी से आप बढ़िया सा कुछ सुनाएं। व्हाट ज़रूर, वुड यू लाइक ज़रूर। टू ओपन अप विद? I would like to open up with my भोर भई अम्बे माँ आरती, because यहाँ पर भोर है और मुझे लग रहा है कि I एब्सोल्युटली। think that's the best way to start जब हम भगवान का नाम लें। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अपनी गाई हुई भोर भई आरती, जिससे मुझे बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग्स मिले, और इस आरती के बारे में भी मैं कुछ बताऊँगी, पर पहले फटाफट से सुना देती हूँ आपको आरती। बिल्कुल, बिल्कुल। हे माँ, हे माँ, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर बिच आरती जय माँ, हे दरबारा वाली आरती जय माँ, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाटी मंदर विच आरती जय माँ, सूहे चोलिया वाली आरती जय माँ, सर्व सोने दे तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दे तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा बाटी मंदर बिच आरती जय माँ, हे दरबारा वाली आरती जय माँ। क्या बात है!
क्या बात, क्या बात है। बहुत बहुत खूब, धन्यवाद। जय माता दी। माँ जो होती है, माँ की आरती से जो प्रेरणा मिलती है, उससे हमें एक होलिस्टिक हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है। बिल्कुल और माँ की बिल्कुल। आरती के साथ आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो बहुत जी। अच्छा लगा, बहुत सुंदर गाया आपने। और 8.5 मिलियन व्यूज़ हैं आपके इस आरती पे, मैंने देखा। आई वाज़ जस्ट वाचिंग द यूट्यूब लिंक। तो राइट। काफ़ी अच्छे लोग इसे सुनते हैं और काफ़ी बिल्कुल। फॉलोअर्स हैं आपके इनफैक्ट। हाँ, बिल्कुल, इस आरती से इतना मुझे प्यार मिला, और क्योंकि जब हमने इस आरती को हुँ, रिकॉर्ड किया, तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ 6 आरतीज़, ट्रेडिशनल राइट, आरतीज़, राइट। एंड रीवर्क्ड, रिक्रिएटेड म्यूजिकली इन अ डिफरेंट वे, इन अ कंटेम्परेरी वे। तो इसका मेन पर्पस ये था कि ये आरती लूप पर लोग इसको चलाएँ, और एक तरीके से मेडिटेशन हो सके, एक तरीके से वो तार उस तक जुड़ सके, यही इसका पर्पस था। और इस आरती से रिलेटेड एक एक स्टोरी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहती हूँ, कि एक यूएस की फैमिली है, ये आपकी वहीं की अमेरिकन हाँ, फैमिली हाँ। है, इंडियन है, इट्स एन इंडियन फैमिली बट स्टेइंग इन अमेरिका। तो उनके फैमिली मेंबर की मल्टीपल ऑर्गन सर्जरी होनी थी, 18 आवर्स की सर्जरी थी। क्या तो बात है! इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी कि उनसे जब पेशेंट से पूछा गया कि आप क्या, सर्जरी से पहले जैसे पूछा जाता है आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी कोई ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा मुझे विधि शर्मा की वो आरती चला दीजिए, वो सुना दीजिए बस। वॉव! तो वो आरती जब चलाई तो वो डॉक्टर्स ने उसको चलने ही दिया, वो पूरी सीढ़ी चलती रही, और 18 घंटे की वो सर्जरी उनकी सक्सेसफुल हो गई, एंड द पेशेंट अमेज़िंग। रिकवर। तो ये जो पर्पस है हमारा, संगीत करने का जो पर्पस है, मुझे लगता है कि इससे बढ़ के और कोई सेवा नहीं हो सकती ह्यूमन काइंड की। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये जरिया बनाया कि अ, मेरी आवाज के जरिए, जो उसने आवाज मुझे दी है, जो गॉड्स गिफ्ट है, इट्स बीइंग यूज्ड इन दैट डायरेक्शन, सो आई फील कंप्लीटली ब्लेस्ड, टोटली दिस ब्लेस्ड। इज़ सच एन अमेज़िंग स्टोरी। बहुत तगड़ा भगवान का दैविक कनेक्ट है, बिल्कुल। और वो डॉक्टर्स अब दे आर प्लेइंग द सीडी इन द कार्स, वो अपने गाड़ी में आते जाते उसको सुनते हैं, चलाते हैं, टू डी स्ट्रेस देमसेल्व्स, सो आई फील रियली ब्लेस्ड। वेरी नाइस विधि। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शुभारंभ हुआ है हमारे इस सेशन का, सूदिंग सेशन दैट आई हैव केप्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जी। आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में जब आप डिवोशनल सॉन्ग्स को परफॉर्म कर रहे हैं, एक जॉनर था, मतलब पहले से एस्टैब्लिश नाम जो हमने सुने थे डिवोशनल म्यूजिक में, वो अनुराधा पौडवाल जी का, जी। अनूप जलोटा जी का, या फिर जी। आपके जो नरेंद्र चंचल जी हैं। आप एज ए बिल्कुल। यंग जनरेशन उभर के आ रहे हैं, क्या हम्म। स्ट्रगल रही है आपकी? मुझे स्ट्रगल से ज़्यादा लग रहा है कि ये एक ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें एक्सपीरियंसेस जो हैं हर तरह हाँ, के, अच्छे भी और बुरे भी, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एंड इट्स ऑल अबाउट एन्जॉयिंग। अगर हम उस चीज़ को ऐसे लेंगे कि नहीं तो ये नहीं होना चाहिए, या ऐसा क्यों हो रहा है, तो आता है डेफ़िनेटली। कई बार ये भी लगता है कि मैंने ठीक किया या नहीं, म्यूज़िक परस्यू करके, एम नहीं आई नहीं, एट द आपने राइट बहुत प्लेस? अच्छा किया, बिल्कुल बढ़िया किया। बहुत लोगों की समटाइम्स यू फील लॉस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी जो है, ये अपने आप में एक सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है। मुझे लगता है कि वो मुझे अपने आप से ही मिला रही है। आप बहुतों को उनको उनके आप से ही मिलवा रहे हैं। ये जो सोलफुल कनेक्ट आज मैं जो कर रही हूँ, व्हेन आई एम सेइंग अ सूदिंग सेशन टू कनेक्ट विद द सोल्स, आज हम सब लोग थोड़े लॉस्ट हैं। बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो जी। चली गई कोरोना जी। वायरस की जी। वजह से। जी। विश्व में बहुत ज्यादा महामारी ने दुखी कर रखा है लोगों को। और बहुत कहीं ना कहीं बहुत। म्यूजिक कम्स एज अ थेरेपी। तो मैंने ये करेक्ट। सोचा कि करेक्ट। आज ये थेरेपी जो है उसको मैं लेकर के एक सेशन करूं। तो विधि, जी। आप एक गाना बढ़िया सा जी। जो है, जी। और एक सोलफुल सूदिंग थेरेपी के लिए अगर करोगे, तो आप क्या गाना चाहोगे? आप बताइए। मैं गाना चाहूँगी, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि एक सेल्फ मेडिटेटिंग का टाइम है, जो मुझे राइट। लगता है कि एक सुपर जो पावर है, उसने हमें अपॉर्च्युनिटी दी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। और एक बहुत अच्छी पोएट्री है हुँ, संत कबीर की, तो क्या आप उसे कह सकते हैं एक सूफियाना रचना है। बहुत और अच्छी। इट टॉक्स अबाउट एक्सप्लोरिंग वन सेल्फ। हुँ, घूंघट के पट खोल,
तोहे पिया मिलेंगे. तो क्या उसकी बात कुछ, है! it's my This is composition. amazing. So I'm just going to sing that for you. Yes. Absolutely. Thank you. कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, घट घट में वह साईं रमता, दुनिया देखना घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया पिया मिलेंगे, तोहे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल, कटुक बचन मत बोल, कटुक बचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विधि, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा लगा, एक बहुत ही सोलफुल कनेक्ट जो है वो आ रहा है, और बहुत अच्छा आपके, मुझे जो अभी रिव्यूज आ रहे हैं पैरेलली मैं पढ़ रही थी, मुझे मेरे ऑडियंस ने बोला कि हमें गूजबम्स आ रहे हैं आपका म्यूजिक, आपकी सिंगिंग सुन करके, एंड दे आर एक्चुअली लिसनिंग, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन करके, मुझे भी खुशी होती है कि जब कोई एक मीनिंगफुल प्रोग्राम हम प्रेजेंट करते हैं, दैट्स वेयर इट इज. तो विधि, आपकी जो जर्नी है, आपने बॉलीवुड सिंगिंग भी की है, और हाल ही में ऑफ कोर्स इरफान खान जी का देहांत हो गया, और उनकी मूवी जो थी पान सिंह तोमर में आपने एक फोक सॉन्ग गाया था, जिसको सुनने की मेरी बड़ी दिली तमन्ना है. उनको भी हम याद करेंगे इस सॉन्ग के जरिए, और कनेक्ट होना चाहेंगे हम अपने आप से भी. तो उस सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा बताइए और गाइए उसे. जी ज़रूर. इस सॉन्ग की ख़ास बात ये है कि ये मेरा फ़िल्मी बॉलीवुड करियर का सबसे पहला गाना है, और दूसरी बात ये है कि ये पिक्चर इतनी शानदार बनी कि इसको कई कैटेगरीज़ में नेशनल अवार्ड मिला. सो द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माय फिल्म इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, एंड इट्स रियली एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट. और इरफान खान साहब का क्या उसमें गज़ब का रोल था, और ये जो गीत है जो मैं अभी उनके लिए उनको डेडिकेट कर रही हूँ, ये बहुत उनके ट्रिब्यूट के लिए मुझे लगता है इससे अच्छा कोई गीत नहीं होगा. So I'll completely dedicate this to Irfan Khan ji, and it goes something like this.
ओरे बनवासी रे घर आवो, रे पियरा घर आवो, तपेरे तपावे जियरा, कछु ना सुहावे मनवा, बिना तोहरे रे जलू दिन रतिया, आवो घर आवो रे ओ चंदा, रे अब लो घर आवो, तपेरे तपावे हियरा, हे कछु ना सुहावे मनवा, सेज सुनी रे सुने घर अंगना, So beautiful. And I mean, एक एक शब्द जो है बहुत कनेक्ट कर रहा है, जहाँ बोला ना सुनी, ऑफ कोर्स उनकी याद आ गई। एक पुकार है और मुझे लगता है कि जो उनकी फैमिली है वो यही महसूस करती होगी दिन रात कि शायद लौट आए। एक दर्द है, एक उम्मीद है। It's a huge loss, yeah, completely. To the film industry also, it's a loss. Absolutely. Thank you, विधि। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने रिकनेक्ट किया, एक याद दोबारा ताजा हो गई। एक्चुअली याद आ गया सब कुछ। मैंने पान सिंह तोमर देखी, मेरी बहुत फेवरेट मूवीज में से है वो। जी। तो विधि, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे सिंगिंग की है, सूफी म्यूजिक में। जी। एक कपल ऑफ सॉन्ग्स आर देयर जो मुझे रिक्वेस्ट आ रही है एक्चुअली, असल में तो खासतौर से यारा सीली कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो दूसरे सिंगर्स ने गाए, बट आपकी रेंडिशन आपके तरीके से वो बोल रहे हैं कि सुनाएं आप। और एक सॉन्ग है झीनी झीनी करके, बहुत ही फेमस आपका सॉन्ग है। मैं चाहूंगी थोड़ी सी उसका बैकग्राउंड दे करके उस गाने को सुनाएं। जरूर। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया मैं पहले सुनाती हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी जबरदस्त कबीर साहब की पोएट्री है। एंड इन दिस पोएट्री, क्योंकि वो एक जुलाहा थे, एक वीवर थे जो कपड़ा बुनते हैं, और उन्होंने जो चादर है जो बीनी जाती है, जो बुनी जाती है, ह्यूमन बॉडी को उससे कंपेयर किया है। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, काहे के ताना काहे के बुनी, कौन तारे से बुनी रे चदरिया। तो ये हमारी जो चादर है, इसको 9 महीने लगते हैं, आगे उसमें ये चीजें आ रही हैं। तो कैसे बनती है चादर, कैसे वो संसार में आ रही है। तो ह्यूमन बॉडी को उन्होंने चादर के बीनने के बुनने के तरीके से कंपेयर किया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंट्रिकेट पोएट्री। और इस गाने को हमने बनारस में शूट किया। इसका एक ऑफिशियल वीडियो रिलीज किया HMV सारेगामा से, और बनारस में 3 दिन का हम लोगों ने इसको शूट किया, क्योंकि बनारस कबीर की नगरी कही जाती है, और हमें लगा कि इट्स द ओल्डेस्ट सिटी एंड द मोस्ट होलीएस्ट सिटी ऑफ ऑल। So I think it was a surreal experience to be singing झीनी झीनी इन बनारस के जो घाट है, गंगा के घाट है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अभी जो गाऊं तो आपको वहां तक पहुंचा दूं। बिल्कुल विधि, आप जब बोल रहे हैं, पहले तो आप ऐसा एजुकेशन दे रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको कि आप जब बता रहे हैं ना सारी चीजें, इतना रिलेट कर पा रही हूँ। आपने बनारस बोला, बनारस के घाट बोले, मुझे नाव, पानी, नदी, माझी सब दिख गए हैं। और अब तो आप ले ही चलिए बनारस, और ये शरीर जो है ना, ये जो माटी का शरीर है, जो चादर सिली है, इसके बारे में तो आप बढ़िया सुनाई दीजिए। जरूर। झीनी 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 बीनी रे चदरिया, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, झीनी 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 झीनी
तार से बिनी रे चदरिया झिनी 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 आठ कवल दल चरखा डोले पाँच तत गुण तीनी चदरिया पाँच तत गुण तीनी. It's talking about the 5 elements. Absolutely, I'm hearing that, right. आठ कवल दल चरखा डोले पाँच तत गुण तीनी साई को सियत मास 10 लागे साई को सियत मास 10 लागे ठोक ठोक के बीनी रे चदरिया झिनी 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 झिनी. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. 5 तत्वों से बनाई ये चदरिया है और आज के माहौल में बड़ा रेलेवेंस रखती है. हमारी कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी बने, कितना भी कमाएं, खाली हाथ चले जाते हैं. ये जो चादर है मिट्टी की चादर बन जाती है और हम इसमें पंच तत्व में ही मिल जाते हैं. दरअसल विलीन हो जाते हैं. बहुत ही रेलेवेंट सिंगिंग है आज की सिचुएशन के हिसाब से, जो हमें लाइफ को अंडरस्टैंड करना है, समझना है और आगे बढ़ना है. दर्द भी है, खुशियां भी हैं, साथ चल रहे हैं जिंदगी के. ये संगीत का जो नाता है ये हमें मजबूत बनाता है और आज आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा, बहुत अच्छी सिंगिंग चल रही है. आज त्योहार का दिन भी है, जैसा मैंने बोला कि आज ईद है और आई थिंक हिंदुस्तान में ईद मेरे ख्याल से आज लगी होगी आपके मॉर्निंग. और यहाँ अमेरिका में आज संडे है तो 24 मई को ईद रही है. तो एक हमारे खास सभी मुस्लिम फ्रेंड्स के लिए एक बढ़िया सा कुछ कनेक्ट ईद से रिलेटेड या कुछ मैसेज उसके हिसाब से आप एक सिंगिंग जरूर करिए उनके लिए. जी जरूर. मैं एक हजरत निजामुद्दीन औलिया जी का कलाम है वो पेश करती हूँ और वो मेरी होपफुली अपकमिंग रिलीज है क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉक हो गया. बट आई एम होपफुल कि वो बहुत जल्द हमारे ऑडियंस तक पहुंचेगा. तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाती हूँ. रैनी चढ़ी रसूल के सो रंग मौला के हाथ रैनी चढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ जिसका चोला रंग दिया सो धनवा के भाग आज रंग है रे माँ रंग है आज रंग है
रे माँ रंग है रे, मेरे महबूब के घर रंग है रे, मेरे महबूब के घर रंग है रे, आज रंग है रंग है आज रंग है रंग है आज रंग क्या बात है रे माँ रंग है अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। आज रंग है, जी क्या बात है। आज त्योहार का रंग है, एक अपना प्यार का रंग है, ईदी का बिल्कुल रंग है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब विधि ये बताइए कि अभी आपका आगे क्या प्लान है? इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस, आप अमेरिका आए हैं कि नहीं अभी? मैं बस अब मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाली हूँ, अब आपसे मेरी मुलाकात हो गई है तो हम तो मुझे पक्का लगता बुलाएंगे है आपको। मुझे लगता है कि अब देर नहीं होगी और बस यही उम्मीद है कि ये लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि सभी के काम में इतनी मुश्किल आ रही है और जहाँ तक कलाकारों की बात है, अ, उनका काम ही ये है कि वो अपने ऑडियंस, अपनी लाइव ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हैं और जब तक ऐसी सिचुएशन रहेगी तो हमारे साथ जो हमारे साथी कलाकार हैं, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, दे आर ऑल कंप्लीटली आउट ऑफ जॉब एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कोप फॉर एवरीबडी। तो एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है मिलकर इस कठिनाई से बाहर निकलें और जल्दी-जल्दी अपने ऑडियंस के रूबरू आ सकें, ताकि उनका भी हम स्ट्रेस कम कर सकें, उनको खुशी बाँट सकें, अपने संगीत दे सकें और संगीत के साथ-साथ शांति, विश्व शांति रहे, विश्व में खूब शांति रहे, सुख रहे, सब लोग समृद्ध हों, इसी इसी बहुत प्रार्थना सुंदर के साथ। सोच है आपकी, बहुत ही सुंदर सोच है, अच्छी सोच है। इंसानियत जो है उसका कनेक्शन आपने बहुत अच्छे तरह से बताया कि टेक्नीशियंस जो अनएम्प्लॉयड हैं, एक जी, पूरी जी, इंडस्ट्री जी। को बड़ा झटका लगा है, और बहुत झटका, ऑडियंस के बहुत साथ झटका। कनेक्ट होना, यू नो, जी, एक जी। बिल्कुल हमारी यही विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ हैं कि सब कुछ नॉर्मल आए दोबारा ज़िंदगी। थोड़ी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी बनती है, हाइजीन के बारे में, साफ-सफाई के बारे में ध्यान, अगर हम ध्यान रखेंगे तो बाकी जल्दी ही लोग सब ठीक होंगे। तो ऑफ कोर्स प्रोग्राम गाने का है, लेकिन हाँ, मुँह पे मास्क ज़रूर लगाइए, ग्लव्स पहनिए अगर पहनने हैं, अगर कहीं जाना है, कुछ बिल्कुल, चीज़ें छूनी हैं, बिल्कुल, तो आप सबका ही ध्यान रखेंगे और जल्दी ही फिर हम उभर पाएँगे इस संकट से। वैश्विक संकट है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, और उससे हम उठ पाएँगे तभी। तो बिल्कुल। विधि, बहुत अच्छा, सो फार बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, और मुझे खास तौर से रिक्वेस्ट जो आई है कि यारा सीली सीली के लिए थोड़ी सी पंक्तियां आप वो भी मैं सुनूंगी आपसे। जी, जी, जी। तो ये जो गीत है, ये मुझे लग रहा है कि मैं आज इसको कुछ काफ़ी समय के बाद गा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बचपन में इस गीत को गाती थी और इस गीत को गा के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। क्या बात है। बहुत सारे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स मैंने बचपन में जीते और ये बड़ा ख़ास गाना है मेरे लिए। मैं कोशिश करती हूँ कुछ लाइनें इसकी सुनाती हूँ। बिल्कुल। हम्म, यारा सिली सिली बिरह की रात का जलना, यारा सिली सिली बिरह की रात का जलना, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिली सिली बिरह की रात का जलना, यारा सिली सिली ढोला सिली सिली, यारा ढोला, यारा
क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत खूब। मुझे आज पक्का विश्वास है कि मेरे ऑडियंस बहुत चैन की नींद सोने वाले हैं। तो जिसे कहते हैं ना, तृप्त मन से, अच्छे प्यारे से स्वप्नों के साथ सोएंगे। ये आज का मेरा वादा था कि आज सूद करना है, और ये सूदिंग सेशन जो है ना, मुझे बहुत अच्छा, एक खुद भी एक रेजुविनेशन हो रहा है मेरा इस समय, मेरी आत्मा का। आपके जो सॉन्ग्स है ना विधि, जी सोलफुल है, बड़ा ही मधुरता है। आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करें या ना करें, आपकी आवाज में वो खनक है, वो एक म्यूजिक चल रहा है उसमें। तो जी मेरी तो ये दिली तमन्ना है कि आप बहुत आगे बढ़ो, खूब आगे जाओ, खूब नाम रोशन करो अपने पेरेंट्स का, और आपकी अपनी कला से आपका नाम तो रोशन होगा ही और होता रहेगा। हमारी कोशिश रहती है कि हम उस टैलेंट को निकाल करके लाएं इस दुनिया में, जो जी टैलेंट थोड़ा पीछे रह गया है कहीं। बड़ी जी ग्लिटरेटाई बहुत है, एक बहुत शोशाबाजी जो है, जी उस जी शोशाबाजी के माहौल में जरूरी होता है, मीडिया लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सही टैलेंट को उठा करके आगे पेश किया जाए लोगों के आगे। और मेरी छोटी सी एक पहल है कि आप बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मेरी ये जी पहल मेरे अमेरिकन ऑडियंस के लिए है कि ये टैलेंट ये टैलेंट बहुत आगे जाने वाला है, और इस टैलेंट की शुरुआत अमेरिकन मीडिया ऑडियंस के लिए मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है विधि कि आज आप मेरे सेशन में हैं, हमारे इस कम्युनिटी स्पेशल वाले प्रोग्राम में हैं। एंड बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मुझे वहाँ आ रहा है, फेसबुक पे भी आप लाइव हैं, ऑफ कोर्स लोग जी यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, मना टीवी के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यप टीवी पे देख रहे हैं, डिश टीवी पे देख रहे हैं। तो यू जी आर वेरी मच like being seen by our lovely audience, and thanks to आई एम them सो की वजह से ग्लैड। हम हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमें देख सुन रहे हैं और जो मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वो देते रहें। आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद ही है जो हमारी प्रेरणा बनता है, हमें शक्ति देता है और हमें कुछ करने का की इंस्पिरेशन देता है। तो प्लीज़ अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम पे बरसाते रहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी कमी मत रखिए। एंड जो बात आपने कही सोलफुल बात, उससे एक याद जुड़ी है जो मुझे एकदम सामने आई, मैं शेयर करना चाहूँगी, आपके माध्यम से अपनी ऑडियंस तक पहुँचाना चाहूँगी कि एक ज़ी टीवी का भक्ति की आवाज़ करके एक प्रोग्राम आया था। एक वन सिंगल एपिसोड टैलेंट हंट था और जब मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, कुछ 12-13 साल पुरानी बात है, तो उसमें जूरी में ये था कि जजमेंट उसी टाइम मिलना था, देयर वाज़ नो वोटिंग सिस्टम। क्या बात उसी है। समय सुन के मार्क्स मिल रहे थे। नेशनल लेवल का ये कॉम्पिटिशन था, भक्ति की आवाज़, भजनों का कॉम्पिटिशन था। हम्म, तो उसमें पहले सैकड़ों लोगों में से 10, 10 से फिर 5 सॉरी 4 एंड 4 से फिर एक विनर। और उसमें सामने जगजीत सिंह जी, पद्मश्री जगजीत सिंह जी, क्या शुभम बात लुत्रा जी और कैलाश खेर जी जजेस और अनूप जलोटा जी, एवरीबॉडी वाज़ देयर। और हमने उसमें गाया, तो हमें कमेंट्स भी मिलते थे और मार्क्स मिलके फिर हमें विनर घोषित किया गया। तो जगजीत साहब की एक बात है, जगजीत जी की, हमारे गुरु ही हैं वो, मेरे गुरु समान हैं। जब मैंने गाया अपना लास्ट राउंड का टॉप 4 में जब आ गई गाया, तो उनकी एक बात मेरे मन में मतलब वो बस गई है। तो उन्होंने कहा कि तुम सच्चा गाती हो। बिल्कुल सही बस बोला। ये बोले कि तुम सच्चा गाती क्या हो। बात है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए पर वो जो एक लाइन थी, मुझे लगता है मेरा प्रयास अब यही रहता है कि मेरे गीत संगीत में वो सच्चाई, वो इनोसेंस रहे और वो ऑडियंस के दिल तक पहुंचे, मेरे दिल से निकले और उनके दिल तक पहुंचे, तो यही प्रयास है। मतलब एक पारखी ने आपको ऑलरेडी सच्ची बात बता दी, और मतलब हम भी वही उनके, कह रहे हैं। आपने ये चीज़ बोली तो मुझे वो ध्यान आया और मुझे लगा कि मेरे लिए ये एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, एक माइलस्टोन मेमोरी है मेरे लिए कि ऐसा कमेंट मुझे इतने लेजेंड से, ऐसे लेजेंड से मिला कि आज तक क्या उनका बात कोई कोई जगह नहीं ले सका। जगजीत सिंह जी वाज़ द वन है। एंड ओनली एब्सोल्युटली, एंड एब्सोल्युटली। इज़ द वन एंड ओनली, कांट बी रिप्लेस्ड। क्या बात है, क्या बात है। विधि, आगे बढ़ेंगे, मुझे क्योंकि आपसे जी, बहुत कुछ सुनना है। आपकी एक और आती है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, और जी। मैं कहूंगी कि मेरी छोटी बहन ने हुँ, मुझे हुँ, हुँ। हिंदुस्तान से खास तौर से मैसेज करके बोला क्या बात! कि दीदी ये उनसे गीत जरूर सुनिएगा,
मेरे दिन की शुरुआत जो है वो इस गाने से ही होती है। इससे होती तो है। विधि शर्मा की आरती जो जो श्री रामचंद्र की जो गीत है, जो आरती है, उससे दिन जी, की शुरुआत करते हैं। तो ये मुझे आपसे ये भी सुनना है, हिंदुस्तान में जी, तो सुबह है, भोर है और राम जी के नाम से तो सब काम होते हैं। तो अब आप बिल्कुल। उस पे मुझे ज़रूर, हमारे यहाँ पर ऑडियंस को भी एक अच्छी शांति मिलेगी सुन कर के। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मैं ज़रूर सुनाइएगा आप। सुनाती हूँ आपको श्री रामचंद्र। ये भी अप्रैल में रामनवमी के मौके पर हमने इसको रिलीज़ किया था, मिस्टिका म्यूज़िक से रिलीज़ है। हाँ, तो हाँ। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनीर नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। Thank you. ओह! आई एम कनेक्टेड विद गॉड। श्री राम से आपने डायरेक्टली जोड़ दिया। बहुत Thank ही you so सुंदर much. एक आत्मिक कनेक्ट जो है। अम, बहुत सालों बाद एक एक नया फॉर्म सुना है इस आरती का। और जो कहते हैं ना, वो सच्चा कनेक्ट है। ये आपकी आवाज में सच्चा, बहुत ही प्योर कनेक्ट है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे आप जब गा रहे थे तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं जो टेम्पल के ओनर्स हैं, ट्रस्टीज हैं। जी, जी। वो टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टीज इस समय आपको देख रहे हैं और वो लिख रहे हैं एक्सेलेंट। वाह, मतलब एक वाह, धन्यवाद, बहुत अच्छा बहुत मुझे कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहा है। मैं फेसबुक पे भी हूँ, ऑफ कोर्स साथ में देख रही हूँ, क्योंकि एक और लाइव मीडिया सेशन वहाँ चल रहा है, मतलब आपका हमने लाइव किया जी, हुआ है। जी, जी, जी। विधि बहुत अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट थैंक यू, बहुत ही सुंदर। थैंक यू और जोत्सना। अब मैं एक बात और जानती हूँ कि आपने कृष्ण से रिलेटेड जो है, भगवान कृष्ण से रिलेटेड, राधा कृष्ण से रिलेटेड बहुत अच्छा उसमें भी अच्छे गायकी करी हुई है। बहुत जी, अच्छी बिल्कुल, डिवोशन कोशिश की की है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोशिश ये की है। मीरा का प्रेम प्रभु श्री कृष्ण के लिए, और क्या कहते हैं, राधा का प्रेम। तो जी, कोई ऐसा है, कोई अटखेली वाली ऐसी गायकी हो जहाँ कुछ पिया से मिलन की भी बात हो और प्रभु भी मिल रहे हो उसमें? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आई एम वेरी बैड एट दैट, कभी-कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड तो बहुत सारे गाने मुझे अभी ध्यान में आ रहे हैं, पर हाँ, मैं जो है एक अपनी कॉम्पोज़िशन सुनाना चाहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ खुद क्या बात है। जो कंटेंट है, उसको हाँ, ज़रूर सुनाऊँ, ऑडियंस तक कुछ नई चीज़ पहुँचाने की नहीं हमेशा बिल्कुल, हमें कोशिश वही रहती पसंद है। आएगा। आपका होगा तो सच्चा है और अच्छा है, दिल का है, तो पक्का पक्का मेरी सबके मन मेरी का अच्छा है। कोशिश रहती है। हमने एक कॉन्सेप्ट किया था सीज़न्स विद कृष्णा करके,
क्या बात। जिसमें कृष्ण लीलाओं को ऋतुओं पर आधारित करके प्रस्तुत किया था। तो हाँ, उसमें ग्रीष्म ऋतु पर आधारित, और ये सारी जो रचनाएं हैं, ये जैसे नंददास हुए, सूरदास हुए, परमानंद दास हुए, तो 15th सेंचुरी के जो क्लासिक पोएट्स हुए, उनकी पोएट्री, जिनको वरदान था कि वो कृष्ण को देख सकते थे, क्या कृष्ण बात। की लीलाओं को देख सकते थे। तो उन्होंने जो चीजें लिखी, वो उसमें कृष्ण सजीव हो उठते हैं, ऐसा लगता है कि हम्म, वाकई कृष्ण सामने ही है जैसे। तो इसीलिए ये अष्टछाप कवि के नाम से जाने जाते हैं। देयर आर 8 पोएट्स लाइक दिस। तो हाँ, वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं 8, जिसमें सूरदास जी हुए, परमानंद दास जी हुए। तो इन सबके कुछ कुछ पोएट्री लेकर हमने सीजन्स विद कृष्णा नाम से किया। तो उसमें एक जो है, वैसे तो अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, समर सीजन चल रहा है, तो आप कहें तो मैं अटखेली वाला समर सीजन का भी है, और एक शरद ऋतु में रास जब होता है, शरद पूर्णिमा वाले टाइम, तो कृष्ण रास है। तो आप मैं जो ऐसा अच्छा करती हूँ, रास है वो सुनाइए। मैं गर्मी में तो कृष्ण वैसे रास ही, का आपको कुछ गर्मी में तो लोग सुनाती वैसे हूँ। ही झुलस रहे हैं हिंदुस्तान में। और हमारे यहाँ क्या है कि रात को तो खैर ठंडी ही हो जाती है, तो हम अभी जी, भी कहेंगे कि शरद ऋतु वाला ही सुना दीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जरूर जरूर जरूर, मैं आपको कृष्ण रास सुनाती हूँ। सूरदास जी की पोएट्री है, इट्स वेरी जी। ब्यूटीफुल। इसमें यही है कि कृष्ण रास में इतने मगन हैं हाँ, कि उनका पीताम्बर कहीं जा रहा है, उनकी जो बैजंती माल है वो उनके नथ से अटक रही है। क्या बात है। मतलब हाँ, ऐसा है, और वो दृश्य ऐसा है कि सारा योग और सारा ज्ञान जो है वो झूठा है इसके आगे। ऐसे क्या दृश्य बात। के आगे वो क्या सब बात। कुछ झूठा है। इतना खूबसूरत, इतना सुंदर हाँ, दृश्य है, तो बहुत उसी पर सुंदर। आधारित है। बिल्कुल। आ, देखो रिया मुकुट की लटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन, रास किए निरतत राधे संग, रास किए निरतत राधे संग, नूपुर कांत पायल की पटकन, नूपुर कांत पायल की पटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन। पीताम्बर छूट जाए छिन छिन, पीताम्बर छूट जाए छिन छिन, बैजंती बेसर की अटकन, बैजंती बेसर की अटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन। ये तो सीजन विद कृष्णा से है। क्या दो बात है। क्या पंक्तियां मैं रविंद्र जैन जी की एक खास रचना है, एक राधा एक मीरा, वो भी अपनी बिल्कुल, ऑडियंस के लिए बिल्कुल, गाना बिल्कुल चाहूंगी। सुनाइए, ये बिल्कुल एवरग्रीन है। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, क्या बात है। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, राधा जिसे खो बैठी वो
प्रीति में बोलो एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी. Oh my God, this is so beautiful. This is just amazing. Thank you so much. Oh my God, I don't have words. This is such a beautiful, beautiful singing, such a beautiful connect. एक जिसे कहते हैं ना गॉडली कनेक्ट, एक साथ ही जोड़ दिया है आपने हमें. आप हमें कभी बनारस के घाट ले जाती हैं, कभी हमें वन में ले जाती हैं, अठेली करती हुई क्या कहते हैं कृष्ण लीला जो है उस वन में भी ले जाती हैं. ये जो चीज है ना, ये जो हुनर है, ये बहुत ही 1 in a million काइंड ऑफ पीपल में होता है. और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि इतनी ट्रांजिशन आप कर रहे हो, ले जा रहे हो अलग अलग जगह, और कनेक्ट ऐसा बना हुआ है कि आई जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप दिस शो. मेरे टाइम का बड़ा बंधन है. मैं आप परमिशन दो तो मैं आज ये अपना सेशन थोड़ा और कुछ मिनट के लिए बढ़ाना चाहूंगी. मेरा मन नहीं है आपको छोड़ने का, मोह हो गया है मुझे आपसे. आपकी सिंगिंग से आप भगवान के बहुत करीब ले जा रहे हैं हमें, भगवान के, मौला के, जो भी हमारे भगवान जिस तरह से हम उन्हें जानते हैं. एक कनेक्ट आपकी इस गायकी में है, वो बहुत अमेजिंग है, उम्दा है. थैंक यू सो मच. आप ये बताओ कि विधि आपने काफी लेवल पे परफॉर्म किया है. मैं देख रही थी, मैं पूरा आपका प्रोफाइल पढ़ नहीं पाई. तो आपने आईफा में भी परफॉर्म किया है और काफी जगह पे. थोड़ा सा बताएंगे वैसे जनरली फॉर माय ऑडियंस. जरूर. हम एक्चुअली मनमौजी लोग होते हैं, कलाकार जो भी होते हैं बहुत मनमौजी होते हैं. तो कई बार हम लोग संगीत में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हम कोलैबोरेट करते हैं. तो हमने कोलैबोरेशन किया. एक बैंड है मेडिवल पंडित्स के नाम से, इंटरनेशनल बैंड है. एंड मेडिवल पंडित्स एंड कर्श काले, ही इज फ्रॉम यूएस, and he's a tabla player and an electronics musician. So हम लोगों का एक collaboration था आईफा में, मड्रिड में. आईफा was hosting a music festival also, जिसमें ऐसे बैंड्स आके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, सूफी म्यूजिक को लेकर अच्छे अलग तरीके से कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में करे प्रेजेंट. तो वो एक्सपीरियंस बड़ा मेमोरेबल था हम लोगों के लिए स्पेन में. एंड इट वाज अ वंडरफुल ब्यूटीफुल ऑडियंस. मतलब बुल्ले शाह भी मैं गाऊं तो उस पे भी उतना ही मुझे प्यार मिल रहा है. म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज. आई कुड सी दैट इन पर्सन. मैं वहाँ एक्सपीरियंस कर सकी, क्योंकि वो लिरिक्स जानने वाले लोग नहीं थे. जो भी हम गा रहे थे, जो ठुमरी गाई या जो भी सेमी क्लासिकल बंदिशें गाई या गजल गाई या जो भी चीजें गाई, तो इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड देयर. And it was fantastic. It was a thrilling experience for all of us, each one of us. Very nice, very nice. Yeah, amazing. आपने बुल्ले शाह बोला और मेरा एंटीना एकदम खड़ा हुआ. मैंने कहा अरे अभी नहीं जाने देना, अभी तो बहुत कुछ है. बुल्ले शाह आपने गाया है तो हम कैसे छोड़ देंगे आपको बिना सुने. जरूर. मैं मेरी एक एल्बम आई थी बुल्ले शाह के कलाम की, रांझा नाम से एल्बम थी. तो उसी का एक टाइटल सॉन्ग है, वो मैं प्रस्तुत करती हूँ. रांझा कर दी हूँ मैं, आपे रांझा हुई. वो कुछ क्या बात है. वेरी नाइस. रांझा रांझा कर दी हुण मैं, आपे रांझा होई. रांझा कर दी हुण मैं, आपे रांझा होई. सतो मैनू ती तो रांझा हीर ना खो कोई. सतो मैनू ती तो रांझा हीर ना खो कोई. वे रांझा कर दी हुण मैं, आपे रांझा होई.
सदो मैनू ती दो रांझा हिरना कोई वे रांझा 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 मैं रांझे बिच गैर ख्याल न कोई रांझा मैं रांझे बिच गैर ख्याल न कोई मैं नाही आप है अपनी आप करे दिल जोई मैं नाही आप है अपनी आप करे दिल जोई आप करे दिल जोई वे रांझा रांझा कर दे हुण मैं आप रांझा होई सदो मैनू ती दो रांझा हिरना कोई वे रांझा रांझा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आनंद आनंद आ गया बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत खूब, क्या बात है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिंगिंग, अमेजिंग। इतना एक घंटा से ऊपर हो गया और पता भी नहीं लगा कि टाइम कैसे बीत गया, विधि। आई थिंक मुझे आपके साथ दोबारा मल्टीपल सेशंस में आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अधूरा है। अधूरा क्या, ये तो मैं कहूंगी कि एक शुरुआत हुई है। शुरुआत है, बिल्कुल। विधि मुझे के बहुत साथ, अच्छा लग रहा है जुड़ के जी। विधि के साथ हमारे इस सेशन की, सोलफुल सिंगिंग के सेशन की, जो मैं और भी लाऊंगी, ये तो सिर्फ शुरुआत है और अभी तो बहुत सारे कदम आपके साथ चलने हैं। मना टीवी आपका साथ देगा इस जर्नी में और आपको हम सुनने के लिए आपसे अपॉइंटमेंट लेते रहेंगे। जरूर जरूर, आप जब मुझे याद करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू बहुत सो ही मच। सुंदर समय बीता है हमारा और आई एम वेरी श्योर मेरे ऑडियंस जो है आज बड़ी चैन की नींद सोने वाले हैं और कल उनका अच्छा बीतने वाला है। कल यहाँ मेमोरियल डे है और डेफिनेटली एक अच्छी सुबह के साथ उठेंगे, एक फ्रेश माइंड और मन के साथ में, एक हृदय के साथ में उनका शुरुआत होगी कल। विधि, कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे अपने गीत के जरिए हमारे ऑडियंस को? मैं आपको आपका एक फेवरेट रेंडिशन, जो आपका सॉन्ग, जो मैं चाहूंगी आप सुनाएं मेरे जाने से पहले। मैं चाहूँ तो आधा घंटा और बढ़ा सकती हूँ, बट मुझे पता है आपके भी कंस्ट्रेंट्स हैं और मैं चाहूंगी एक और सेशन आपके साथ हम करें। आपने भक्ति के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला और ऐसा बोला कि जब आप बता रहे थे कि गाने की क्या बैकग्राउंड था और उसके साथ आपने जिस रिलीजियस फैक्ट्स को जोड़ा है ना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट देम। हम क्या है ना, हम पकड़ते हैं खबर और खबर में से खबर निकालते हैं, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो मुझे सवाल में ही जवाब में ही आपके सवाल छुपे हैं। बहुत सारे हैं। तो वो आपने हमें टीच किया, ये जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, आप जो जोड़ रहे हैं हमें ऑलमाइटी से, आप उसका मीनिंग के साथ बता रहे हैं सब चीजों को। ये बहुत कम कलाकार करते हैं और ये आपकी खासियत रहेगी इस चीज में। तो मुझे आपसे दोबारा कनेक्ट करना ही पड़ेगा उसके लिए। अब आप अपना एक फाइनल जो है बढ़िया सा एक फेवरेट सॉन्ग आप हमें सुनाइए अपनी तरफ से। आपकी क्या चाहत है? हम तो आपके फेवरेट सॉन्ग हमने आपसे बोल बोल के सुनवाए, क्योंकि हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं। जी 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 जी। मैं क्योंकि आपने इस सिचुएशन की बात की कि किस तरीके से हम इतने मुश्किल दौर से जो गुजर रहे हैं, तो सबके लिए कलेक्टिव प्रेयर करते हुए मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जो बड़ा पॉपुलर है और हमें शायद शक्ति देगा इस सबसे निकलने की, बाहर निकलने की। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना
दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। क्या बात है। प्रभु हमें शक्ति देंगे, कल्याण करेंगे सबका। और ये जो मधुर आवाज आई है विधि शर्मा के हृदय से, इसकी प्रार्थना तो प्रभु पक्का सुनेंगे और हम सबको सशक्त करेंगे। समय हमारा कठिन है और इस समय को हम काट करके आगे बढ़ेंगे। मन में हौसले हमारे बुलंद हैं, हम बुलंदी से अपने दिल के साथ अच्छी बातें रखते हुए आगे बढ़ेंगे, अच्छी दुआएं रखेंगे, प्रेम रखेंगे, केयर रखेंगे, कंसर्न रखेंगे। ये दुनिया है, ये ग्लोबली यूनाइटेड वर्ल्ड है, हम सब एक हैं। इसी धारणा से हम आगे बढ़ेंगे, इस मुसीबत और महामारी को हम सब मिल करके दूर करेंगे। Thank you so much. Thank you. Thank you for making me a part of Community Special with Jyotsna. It's really an honor, a pleasure to be a part of your program. I am simply honored and humbled and I'm very grateful to you कि आपने शोभा बढ़ाई हमारे इस शो की, और एक पूरा विश्वास जो है मेरा पक्का हो गया। एक अच्छा कलाकार जब मिलता है तो उससे रिश्ता सदियों तक चलता है, और हमारी आपसे ये कनेक्शन जो है ये सिर्फ शुरुआत है और बहुत आगे जाएगी, इसका हम वादा करते हैं मना टीवी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म की तरफ से। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। आप जब याद करेंगे मैं आ जाऊंगी। बिल्कुल, हम बहुत जल्दी करेंगे सेशंस आपके साथ। दीदी, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी एजुकेशन भी दी हमें, उजागर किया हमारे मन को, स्वच्छ किया, पवित्र किया अपनी आवाज से, और एक थेरेपी दी जिसकी हम सबको बहुत जरूरत थी। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस टाइम ऑफ योर्स। आपने सुबह भोर में उठ करके तैयार होकर के हमारे लिए ये शो प्रेजेंट किया, तो उसके लिए हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू, इट्स रियली माय प्लेजर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विधि। अब हम जाएंगे, बाय करने का मन तो नहीं है, अभी छोटी सी विदा लेंगे, फिर लेकिन दोबारा आपसे जुड़ेंगे। और थैंक यू फॉर दैट। एंड नाउ माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद है, मुझे विश्वास है पूरा कि आज की ये शाम आपको बहुत कुछ दे के गई होगी। विधि शर्मा ने हमारे दिल के तारों को, हमारे मन के तारों को छुआ है। एक अलग तरीके का म्यूजिक जो है उससे आज हमारी पहचान हुई है, जान पहचान हुई है। एक सच्ची आवाज, एक अच्छी आवाज, एक ऐसी आवाज जिसको बहुत सारे लोगों के दिलों तक पहुंचना है। हम कोशिश करेंगे ये आवाज आप तक आती रहे और आप लोगों के बीच में भी आए। जब विधि शर्मा अमेरिका आएंगी तो हम ये कॉन्सर्ट करेंगे विधि के लिए। तब तक के लिए खैर, ये हमारा आज का सेशन था। अगले सेशन हमारे और आ रहे हैं। There are more informative programs coming it with Community Special with Jyotsna. I have a responsibility to do something good, inform you, educate you, entertain you, motivate you, and mobilize you. I will keep doing that. Till then, keep connected with us. We will come back with another session. Stay blessed, stay safe, stay home, stay strong as you have been. Thank you so much for watching us today. Thanks. Thank you, Vidhi. Thank you, Jyotsna.